اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، بھائی، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق اور اس راہ میں چلنے والے، دیکھنے سننے والے سب کو میرا سلام۔ یہی وہ سورہ پاک ہے جو ہر دفعہ تلاوت کی گئی ہے اور وہی مضامین کا سلسلہ ہے۔ میں ایک ایسے مرتبے پر پہنچ چکا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ایک ایسے مرتبے پر پہنچ گئے ہیں جس میں عالم محسوسات کہا جاتا ہے۔ یہ جو جہاں ہے یہ محسوسات کا جہاں ہے، اس کا تعلق ہمارے محسوسات کے ساتھ ہے اور اس کو عالم اجسام بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ظہور کے مرتبوں میں سے وہ مرتبہ ہے جہاں آ کر ظہور کا درجہ کامل ہو گیا، یعنی وہ جو چیز غیر محسوس تھی اس مرتبے میں محسوسات کے اندر ہے۔ یہاں ایک بات کہوں تاکہ غلط فہمی نہ رہے، جسے میں نے غیر محسوس کہا، جو ہمارے محسوس سے باہر ہے وہی اس عالم میں محسوسات میں ہے، جسے ہم عالم ملکوت میں محسوس نہیں کر سکتے، عالم ارواح میں محسوس نہیں کر سکتے تھے، جسے ہم ذات باری کے علمی صورتوں کے اعتبار سے یا ذات کے اعتبار محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ آج وہی ہمارے محسوسات میں ہیں۔ ہمارے حواس دھوپ، گرمی، سردی، چوٹ، تکلیف، درد، بھوک، پیاس کو محسوس کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم ایسے عالم میں ہیں جہاں ہمارے حواس میں سب کچھ ہے، ہماری حس اسے محسوس کرتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس عالم محسوسات میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس جہاں میں رہتے ہوئے ان مرتبوں کو بھی محسوس کرتے ہیں جو ہمارے سے باہر ہیں۔ فرشتے ہمارے حواس سے باہر ہیں، مگر ہم میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس عالم امکان اور عالم جسام میں ہوتے ہوئے عالم رواح کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو صرف محسوسات میں رہ گئے، اور ہم میں ایسے بھی موجود ہیں جو ان مرتبوں کو محسوس کر کے ہم میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں میرے اس بیان کی دلیل ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے سے زیادہ کسی کو علم نہیں، تو ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے سے زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے، تو اس سے جا کر علم لدنی سیکھ۔ عرض کی کہ وہ کہاں ملے گا؟ تو مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وہاں ملے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ مفسرین نے اسے خضر لکھا ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا وہ اس مقام پر ملے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ موسیٰ نبی ہوں اور ان کا مقام کلیم اللہ ہو، ان کے علم کا کیا اندازہ جو کوہ طور پر اس مقام پر پہنچا ہو کہ اس کے ہاتھ میں جو سوٹا ہو اس کو پھینک دے تو اژدہا بن جائے، اور اگر پھر اٹھائے تو سوٹا بن جائے، اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا لے پھر باہر نکال لے تو چاند کی طرح روشن ہو۔ اس سے یہ کہا جائے، ایسا مقام رکھنے والے کو کہا جائے کہ تو خضر سے جا کر علم سیکھ۔ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرے تو براہ راست ہوں جو انعامات ملیں وہ بلا واسطہ ملیں، مگر علم کے لیے حکم ہو کہ جا کر خضر سے علم سیکھ۔ اس کا یہ معنی ہے کہ کیا ذات باری تعالیٰ وہ علم کوہ طور پر نہیں دے سکتے تھے؟ وہ وہاں بھی عنایت ہو سکتا تھا، مگر ذات باری تعالیٰ اس طرح نہ چاہتے تھے۔ ذات باری تعالیٰ اس طرح چاہتے تھے کہ خضر کے پاس جا کر علم حاصل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیم اللہ بھی ہو تو اس کو علم واسطے سے دیتا ہے۔ جس کو رب کا اتنا قرب ہو کہ آگ سے آواز آئے کہ یہ آگ نہیں میں تیرا رب ہوں، اور پھر کلام کا شرف حاصل ہو،
اسے علم لدنی سیکھنے کے لیے خضر کے پاس جانا پڑے۔ جب موسیٰ کو نبی ہوتے ہوئے ایک راہبر کامل کی ضرورت ہے تو ہمارے لیے تو بہت ضرورت ہے۔ ہم ظاہری ارکان کو نہیں جانتے، نماز کو ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں راہبر اور پیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں حجاب ہو گیا ہے، ورنہ ضرور ضرورت ہے۔ ابلیس جنات کی جنس سے تھا اور اتنی عبادت کی کہ فرشتہ بن گیا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی بھی پیر ہوتا تو گمراہ نہ ہوتا۔ عبادت سے فرشتہ تو بن سکتا ہے مگر گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیر کی ضرورت ہے، اگر پیر ہوتا تو گمراہ نہ ہوتا۔ یہ بات ایسے ہی نہیں کہ جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ بات صرف کہنے کو نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ عقل کبھی غلطی اور گمراہی کی طرف نہیں جاتی، بشرطیہ کہ عقل کے خراب ہونے میں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ عقل کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ غلطیوں سے بچاتی ہے۔ مگر جب عقل پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق کام لیتا ہے، گمراہی کے کام عقل نہیں کرتی، یعنی عقل اپنی فطرت کے خلاف کام نہیں کرتی۔ عقل ایسا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کسی کے قبضے میں نہ چلی جائے۔ اس عقل کو پہلے ہی کسی پیر کامل کے قبضے میں دے دو تاکہ شیطان کے قبضے سے بچ جائے۔ صحابہ نے اپنی عقل حضور کے سامنے قربان کر دی۔ اسی جگہ پہ مولانا روم کیا خوب فرماتے ہیں، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل حضور پر قربان کر دو۔ پنجگانہ نماز کیوں ہے؟ چھگانہ یا چار گانا کیوں نہیں ہے؟ عقل تو ایسا کہتی ہے کہ رکعت کسی میں 4، کسی میں 12، کسی میں 7 کیوں ہے؟ عقل اس کمی بیشی پر اعتراض کرتی ہے، مگر جس نے اپنی عقل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی ہو وہ اس پر سوچتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ صبح 4 رکعت پڑھ، ظہر کو 12 رکعت پڑھ، الحاظ القیاس، اس لیے میں عقل سے کام نہیں لیتا، مجھے فرشتے نظر نہیں آتے۔ تم مانا کیسے؟ مگر جو عقل سپرد کر چکا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہہ دیتا ہے کہ جب حضور نے فرما دیا تو میں نے مان لیا۔ جب عقل ہم نے کسی پیر کامل کے سپرد کر دی تو پھر شیطان کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے عقل کو پیر کامل کے سپرد کر دیا وہ عقل کا کہنا نہیں مانتا، جس نے عقل کا کہنا مانا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے حضور کا کہنا مانا وہ ایماندار ہو گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یؤمنون بالغیب، ایماندار وہ ہے جو عقل سے باہر ہو کر غیب پر ایمان لے آئے۔ اس طرح جس نے عقل کو پیر کے سپرد کر دیا وہ پیر کے حکم کے مطابق چلتا ہے، وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیر ہی مسند ارشاد پر فائز ہے۔ اپنی عقل کو شیخ کے سپرد کرنے کے بعد پھر بے فکر ہو جاؤ۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ نے حضرت خضر کے پاس علم سیکھنے جا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ خدا تو ہی بتا دے خضر کے پاس کس لیے جاؤں، مگر ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل پڑا۔ وہ اس مقام کی تلاش میں چل پڑا۔ خضر نے کہاں ملنا ہے؟ جہاں 2 دریا ملتے ہیں، مگر موسیٰ اپنے خادم سمیت اس مقام سے آگے نکل گئے تو بھوک لگی، کھانے کے لیے کہا تو خادم نے عرض کی کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب ہم اس مقام پر پہنچے تھے جہاں 2 دریا ملتے ہیں، بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ بھونی ہوئی مچھلی مردہ ہے، زندہ نہیں۔ جہاں بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو وہاں دل مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔
दो दरिया का क्या मतलब है? मैंने आपको समझाया है। आलमे मिसाल और आलमे जसाम आपस में मिलते हैं। यही दोनों दरिया हैं जो आपस में मिलते हैं। एक बात और आपको बताऊं, जब मैं हज को गया था तो समुंदर देखा, दूसरे हाजियों ने भी देखा होगा। समुंदर में ऐसे ऐसे मकामात भी आते हैं जहां एक तरफ नीला पानी है और एक तरफ सफेद पानी, दोनों में कोई दीवार नहीं। दो दरिया अलग अलग बहते हैं मगर आपस में नहीं मिलते। दोनों का पानी अलग अलग बहता है। दो दरिया मिलते हैं मगर हद्दे फासल नहीं। इसी तरह सूरत और बेसूरती के दो दरिया मुतसल चल रहे मगर हद्दे फासल नहीं। जहां ये दरिया मिलते हैं, एक तरफ वजूब का दरिया है और एक तरफ अमकान का दरिया। इन दोनों दरियाओं का जिक्र कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है। सुम्मा दना फतदला वकाबा कौसैन आओ अदना। इधर अनवार खुदा का नज़ूल शुरू हुआ, उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनवार का अरूज शुरू हुआ। जहां दोनों मिले वो काबा कौसैन का मर्तबा है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा इससे भी अलग फरमाया कि वो आओ अदना है, वो और आगे चले गए। और फिर खुदामद करीम कह उठे, फा होया इला अबदिही मा आओहैया, यानी अब मेरा महबूब ऐसे मर्तबे में है कि इसका बयान ही नहीं हो सकता। हजूर के मर्तबे वकाबा कौसैन आओ अदना तक तो बयान हुए मगर इससे आगे बयान ही नहीं हो सकते। वो दरिया एक तरफ अबूदियत का दरिया और एक तरफ अलूहियत का दरिया। वकाबा कौसैन, जैसे दो कमाने मिल जाएं, वो कमाने जब मिले तो दायरा बनता है, दरमियान में खत हो तो कमाने बनती हैं। दरमियानी खत दोनों कमानों से मिला हुआ है, कमान और कमाने अमकान से और कमाने वजूब से। ये ना समझ लो कि ऐसे ही दो कमाने हैं, बल्कि ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। ये खत दोनों तरफ मिला हुआ है, एक तरफ अलूहियत की कोस से और दूसरी तरफ अबूदियत की कोस से। ये बरज़ख है, ये मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी मूसा को हुक्म हुआ कि मकाम मुस्तफ़ा की तलाश करो, वहां खुदा मिलता है, खिज़र मिलता है। मैंने खड़ियांवाला में रात तकरीर की तो लोग कहने लगे, आप ये कौन सी किताबें पढ़ा करते हैं? ये किताबों का इल्म नहीं, बल्कि ये किताब अपनी किताब से मिलती है। ये इल्म अपनी किताब पढ़ने से मिलता है। ये अलूम अपनी किताब पढ़ने से हासिल होते हैं। जब अपनी किताब की तरफ पीर के फैज़ से नजर चली जाए तो ये अलूम मिलते हैं। मजमाल बहरैन पर कौन मिले? मिलने का तरीका है, वरना नबी का इल्म तो मुसल्लमा है, भला नबी के इल्म से भी कोई चीज बाहर हो सकती है? अगर खिज़र अलैहिस्सलाम को वली मान लिया जाए, खिज़र वली हैं और अब तक जिंदा है, मगर कोई वली नहीं हो सकता जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए। बज़ाहिर खिज़र के हजूर पर ईमान लाने का कोई सबूत नहीं मिलता, मगर अंबिया अलैहिस्सलाम तो अज़ल से ही ईमान ले आए हैं। मालूम हुआ कि हजूर का ही एक मर्तबा था जो मूसा की रहनुमाई कर रहा था। जब खिज़र मिले तो वजूब और अमकान के मिलने के मकाम पर मिले। मेरे दोस्तों, ये आलम जसाम है, इसके मुत्तसल एक आलम है, इसको आलम मिसाल कहते हैं। वो आलम मिसाल भी एक समुंदर है और आलम जसाम भी एक समुंदर है। ये दोनों ऐसे नहीं मिलते जैसे बर्तन में पानी डाल दो और बर्तन और पानी आपस में मिल जाते हैं, ऐसे नहीं, बल्कि वो ऐसे मिले हुए हैं जैसे हरफ और स्याही। हरफ बजाते खुद कोई शय नहीं, स्याही की एक सूरत है। ये जिस्म बजाते खुद कोई शय नहीं, ये आलम मसाल ही की एक सूरत है। वो जो आलम मसाल है जो हमारे बिल्कुल मुत्तसल है, इसी तरह मुत्तसल है जैसे स्याही हरफों की मुत्तसल है, जैसे पानी बर्फ की मुत्तसल है।
मौला ताला ने फरमाया, वो जो समुंदर है वो सूरतों में ढल रहा है, वो सूरतें इसकी अपनी नहीं हैं, बल्कि वो ज़ाते बारी ताला की ज़हनी सूरतों यानी अयाने साबता के मुताबिक सूरतें इख्तियार करता है। जिस तरह कुम्हार के ज़हन में प्याले की सूरत है और वो इसी ज़हनी सूरत के मुताबिक मिट्टी से प्याले की सूरत बनाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुम्हार की बाहर से मिट्टी लेता है, मगर ज़ाते बारी ताला के बाहर कोई शय नहीं। मसाली सूरत जब इस आलम में आती है तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम तमाम समुंदर स्याही बन जाए और अल्लाह ताला के कलमात यानी इल्मी सूरतों को लिखें तो तमाम स्याही के समुंदर ख़त्म हो जाएंगे, मगर अल्लाह ताला के कलमात ख़त्म ना होंगे। ख्वाह ऐसा ही समुंदर और भी मदद को ले आओ, ये आलम मसाल ख़त्म हो जाए, मगर ज़ाते बारी ताला की इल्मी सूरतें ख़त्म नहीं होंगी। तो आलम मसाले मतलब को स्याही समझ लो जो इन सूरतों में ज़ाहिर हो रहा है। ये सूरतें इसकी अपनी नहीं, बल्कि ज़ाते बारी ताला की इल्मी सूरतों के मुताबिक है। ये दोनों समुंदर साथ साथ बह रहे हैं और फिर वो आलम मसाल आलम अरवा के मुतसल है। ये भी दो समुंदर हैं। फिर आलम अरवा का समुंदर और ज़ात का बेकनार समुंदर दोनों इकट्ठे बह रहे हैं। आलम अरवा हजूर का मकाम है और यही मजबल बहरैन का मर्तबा है। तो मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस मर्तबे में मिले वो यही मर्तबा था। इस मर्तबे में जहां आलम मसार और आलम जसाम मिलते हैं, हजूर का मकाम तो इससे बहुत बुलंद है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम इल्म लुदन्नी सीख सकते हो, मगर मेरी बात में दखल ना देना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अब यह देखना है कि मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र के साथ चल पड़े, रास्ते में कश्ती पर सवार हुए और फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का तख्ता तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज किया तो खिज़र ने कहा, तुम्हें तो कहा दखल ना देना। मूसा ने माफी चाही और आगे चल पड़े। फिर खिज़र ने गांव में एक मासूम बच्चे को मार दिया। मूसा ने फिर एतराज किया कि इसका क्या गुनाह है। तो खिज़र ने कहा कि तुम्हें तो कहा था कि मेरी बात में दखल ना देना। मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी चाही और आगे चल पड़े। आगे एक दीवार गिर रही थी, इसकी मरम्मत कर दी। तो मूसा ने फिर एतराज किया कि इस दीवार को गिरने देते तो हमारी मजदूरी का सबब बन जाता। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि तुम्हें तो कहा था मेरी बात में दखल ना देना। मूसा ने माफी चाही। मालूम हुआ कि पीर और मरीद का मर्तबा बयान हो रहा है, यानी पीर जो करता है वो इल्म इलाही से करता है, मुरीद को इसका इल्म नहीं होता, इसलिए मरीद को दखल नहीं देना चाहिए। फिर मूसा ने इसका भेद पूछा तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कश्ती इसलिए तोड़ दी कि दरिया के इस पार बादशाह के आदमी अच्छी कश्तियां पकड़ रहे थे, मैंने तोड़ दिया और बादशाह के आदमियों ने ना पकड़ा और इसका रोजगार चलता रहा। खिज़र अलैहिस्सलाम को गोया इस पार का इल्म था, बादशाह के इरादे और इसके आदमियों के पकड़ने का सब इल्म था। ये इल्म कहां से हो गया? मालूम हुआ कि इसे इल्म लुदन्नी कहते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। फिर बच्चे को इसलिए मारा कि बच्चे के माँ बाप नेक हैं और बच्चा बद होगा। गो खिज़र अलैहिस्सलाम ने लोहे महफूज को देख रहे थे और इस बच्चे का बद होना भी और इसके अपने हाथों कत्ल होना भी देख रहे थे। कत्ल तो गुनाह है, मगर वो बच्चे का मारना गुनाह क्यों ना हुआ? इसलिए कि वो इसके इल्म में था। आदम का दाना खाना गुनाह क्यों ना हुआ? इसलिए कि वो इल्म में देख लिया। अगर इल्म में देखे बगैर खा लेते तो मुजरम होते। वो जो प्याला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन के दानों की बोरी में छुपा दिया, अगर हम ऐसे करें तो फरेबी हूँ। हमारे नज़दीक ये फरेब है। इन्होंने अल्लाह ताला के इल्म में देख कर किया, और कोई इल्म इलाही में देख कर करे तो गुनाह नहीं होता। इसी तरह खिज़र अलैहिस्सलाम ने इल्म में देखकर बच्चे को मार दिया और ये भी देख लिया कि इसके एवज अल्लाह ताला नेक बच्चा देगा। फिर इस दीवार को क्यों ना गिरने दिया? क्योंकि इसके नीचे यतीमों का खजाना था। अगर दीवार गिर जाती तो शरीक लूट लेते और यतीम महरूम रह जाते। रज़ा व तस्लीम इसी को कहते हैं।
اللہ ताला के मुताबिक चलना ही रजा व तस्लीम है। अल्लाह ताला के इल्म में दांत का शहीद होना देखकर दांत शहीद करवाने चले गए। ये नहीं कि इनको मालूम ना था, और किसी पर राज नहीं खुले, गैब के दरवाजे नहीं खुले, वो वली नहीं हो सकता, ख्वाह कितनी ही नमाजें क्यों ना पढ़े। एक शख्स ने 99 यानी एक कम 100 कत्ल किए। इसे ख्याल आया कि किसी के पास जाऊं और पूछूं कि क्या मेरी बख्शिश की कोई सूरत है। एक मौलवी के पास चला गया। मौलवी ने कहा, जब तक खून बहा अदा ना करो माफी और बख्शिश मुश्किल है। इसने मौलवी को भी कत्ल कर दिया कि जहां 99 कत्ल हैं वहां 100 सही। और फिर एक अल्लाह वाला के पास गया जो गैब की बात जानता था। इसने लोहे महफूज में देखा कि इसकी किस्मत में एक कत्ल और है। निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह इसी मुकाम पर फरमाते हैं, औलिया रा हस्त कुदरत अज इला तरजस्ता बाजगर व नंद राह। औलिया कराम को जाते इला से ऐसे कुदरत हासिल होती है कि वो होशियार तीरंदाज की तरह रास्ते से तीर को पलटा सकते हैं, यानी मुसीबत का मुंह मोड़ सकते हैं। मियाँ, क्या ये सवाल है कि ये औलिया अल्लाह में कुदरत मौजूद है? जो कुदरत है वो भी कुदरत खुदावंद ताला की है। एक तरफ कुदरत ने तीर छोड़ दिया, दूसरी तरफ इस कुदरत ने मोड़ लिया। वही कुदरत खुदा की तरफ से हो तो कुदरत है, पैगंबर की तरफ से हो तो मौजज़ा है, वली से मंसूब हो जाए तो करामत है। फिर इसी चीज को दोबारा जरा गौर से सुने। कहते हैं कि वही कुदरत जो तीर को मोड़ दे उस खुदा की तरफ से हो तो इसे हम कुदरत कहते हैं। अगर पैगंबर नबी की तरफ से हो तो हम इसे मौजज़ा कहते हैं। वली से मंसूब किया जाए तो इसे करामत कहते हैं। है वही कुदरत। क्या हुआ? 100 कत्ल हुए हैं। कोई बख्शिश की सूरत है? वो अल्लाह वाला था, मां के पेट में जैनियन ना था, वो कुएं का मेंढक ना था, बल्कि इसकी नजर में लोहे महफूज थी। देखा एक कत्ल और इसकी किस्मत में है, अब इससे आखिरी कत्ल की हैयत को बदलना है। मौलवी अब्दुल रहमान लखनवी के मलफूजात अनवारुर रहमान में यह वाकया दर्ज है कि एक दरवेश हजरत गौस पाक के मज़ार अक़दस पर हाजिर हुआ। रात को सोया तो 70 बार एहतलाम हुआ। सुबह हुई, बड़ा परेशान हुआ। एक अल्लाह वाले से पूछा तो इसने कहा, तेरी किस्मत में 70 जना थे जो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से एहतलाम की सूरत में बदल दिए गए। शरीयत का हुक्म था कि 100 कोड़े लगाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम को इस सजा को पूरा करने के लिए 100 तीलियां इकट्ठी करके झाड़ू की सूरत में बनाकर एक ही बार मारकर इस हुक्म को पूरा किया गया। कत्ल का पता नहीं चलता कि किसने किया था। चाहते तो खुद ही मूसा अल्लाह ताला से पूछ लेते कि किसने कत्ल किया है, मगर हुक्म हुआ कि एक गाय ज़िबा करो। फिर इसकी कई निशानियां बताई कि ऐसी गाय हो, इसके गोश्त का टुकड़ा मुर्दे पर मारो, वो जिंदा होकर बता देगा। अगर अल्लाह ताला मूसा को बराह रास्त बता देते तो कोई मुश्किल बात थी नहीं, मगर बात यह है कि अल्लाह ताला अपने इल्म का इज़हार वसीले से ही करते हैं, तो जो वसीले नहीं पकड़ते बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला के बंदे लामकां की सैर करते हैं। अब देखा कि एक कत्ल है, वो कत्ल भी हो जाए और बख्शिश भी हो जाए, कत्ल की हैयत को बदलना है। मुर्शद की इत्तबा में क्या खूब लिखा है कि अपना जाए नमाज शराब में बगोले, अगर तेरा मुर्शद कहे, क्योंकि साहिब इरफान मंजिल के पेचो खाम से बेखबर नहीं होता। अगर पीर कहे तो शराब से मसल्ला रंग ले, क्योंकि वो मंजिल से गाफल नहीं होते। एक बुजुर्ग को इनके एक मरीद ने इस शेर का मतलब पूछा तो फरमाया कि दिल्ली चलकर बताएंगे। गोया इल्मे इलाही में यह भी देख लिया कि दिल्ली जाकर मतलब फरमाया है। दिल्ली जाकर बताया कि तवाइफों के बाजार में जाओ और आज जो कुंवारी लड़की पहले दिन इस बाजार में बैठाई गई है, इसको हर कीमत पर मेरे पास ले आओ। वो पहले सोचने लगा
कि तवाइफों के बाजार में जाऊं। फिर ख्याल किया कि हुक्म पीर का है और चला गया। वो गया और इस लड़की की कीमत 200 रुपये पड़ी वो ले आया। खुद हजरत हुजरे में तशरीफ ले गए और इनको बाहर बैठने का हुक्म दिया। कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर इस जवान दरवेश ने इस लड़की से पूछा कि अपनी कहानी सुनाओ कि तुम यहाँ कैसे आ गई। इसने कहा, मैं डेरा इस्माइल खान के इलाके की हूँ। मेरे माँ बाप मर गए हैं। दुश्मन मुझे अगवा करके यहाँ फरोख्त करके हैं। दरवेश ने गांव पूछा, तो तुम्हारा गांव कौन सा है? लड़की ने बताया तो दरवेश परेशान हुआ, क्योंकि वो भी इसी गांव का रहने वाला था। इसने बाप का नाम पूछा तो इसके बाप का नाम भी यही था। फिर दरवेश ने पूछा कि तुम्हारा कोई भाई है, इसका क्या नाम है? लड़की ने कहा, मेरा एक भाई है, इसका फलां नाम है और वो दरवेशी सिलसिले में है और अपने पीर की खिदमत में रहता है। ये कहना था कि वो चला कर लड़की से लिपट गया कि तू मेरी बहन है। लड़की ने भी देखा तो पहचान लिया और दोनों रोने लगे। इतने में हजरत बाहर तशरीफ ले आए और पूछा कि शेर का मतलब समझ गए? इसने कहा कि हाँ समझ गया। जो लोहे महफूज की मंजर रखता है, इसके बाद सुन और अमल कर। अब 101 कत्ल पूरा करना है और बख्शिश भी करनी है। ये लोग वो हैं जिनकी निगाहें तकदीर को बदलती हैं। फरमाया कि तू बरसरे राह मुसाफिरों को पानी पिलाया कर। यानी लोहे महफूज में तमाम वाक़या देख लिया है। एक दिन एक घोड़े का सवार आया जो बड़ा मुतकब्बर था। इसने पानी मांगा। इत्तफाकन मशकीज़े से पानी ख़त्म था। इसने कहा कि अभी निकाल कर पिलाता हूँ। वो जल्दी जल्दी पानी निकालने लगा। इस सवार ने इसको बुरा भला भी कहा और एक दो थप्पड़ भी लगा दिए। वो पानी निकाल कर पिलाने लगा, मगर रंज बड़ा था कि इसने ख्वाब वहाँ क्यों बुरा भला कहा। जब वो पानी पीने के लिए झुका तो इसने तलवार निकालकर इसे कत्ल कर दिया। कत्ल करते ही आंखें खुल गई। लोहे महफूज नजरों के सामने थी और अपनी किस्मत में 101 कत्ल देख रहा था, मगर यह समझ में नहीं आता था कि बख्शिश कैसे होगी। भागता हुआ बुजुर्ग के पास गया और पूछा तो इसने कहा, यह मैंने किया है। जो लोहे महफूज पर नहीं होता वो हमारी जुबान पर होता है। क्योंकि जब कोई काम गौर से सुनने वाले इस बात को बड़े गौर से सुने कि जो काम लोहे महफूज पर नहीं होता वो इनके पीर, इनके मुर्शद जो इस राह से वाकिफ है, इस मकाम से वाकिफ है, उनकी जुबान पर होता है। जो वो फरमा दे वो होकर रहता है। ये वाकया साहबे इनवारो रिफान से नकल किया गया। मरीद को चाहिए कि पीर की बात में दखल ना दे। हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसफी के एक मरीद थे। उन्होंने आकर अर्ज किया कि आपके तो नवाब गुलाम हैं, हमारी तरफ तो आपका कभी ख्याल ही नहीं गया। तो फरमाया कि फला दिन जब तो अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ था तो ये बातें कर रहा था। सिर्फ इतना जानता हूँ, ज्यादा नहीं कह सकता। मालूम हुआ कि वो जानते जरूर हैं, ना बताएं तो अलग बात है। मैंने हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसफी के मलफूजात पढ़े। आपका ये विर्द था कि मगरब की नमाज के बाद महार शरीफ की तरफ मुंह कर लेते और 100 बार कहते, या हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद। और तहज्जुद की नमाज के बाद अपने पीर के गांव की तरफ मुंह कर लेते और 100 बार कहते, या हजरत मौलाना नूर मोहम्मद। फिर बैठकर चंद बार कहते, कुन ली मददन या शेख। जो गैर से मदद मांगे वो तो मुशरिक होता है, मगर वो कुतबे वक्त मालूम हुआ कि वो जो करते हैं वो ठीक है। हमारी मिसाल ऐसी है कि एक बच्चे के सामने आग के अंगार आ जाएं तो वो पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इसकी चमक को देखकर पसंद करता है। और जो समझदार आदमी पसंद करता है, पास खड़ा हो, वो इसको रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जल जाएगा। हम हैं बच्चे की तरह। हम एक चीज खुदा से मांगते हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती कि हम इसके लिए रोते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि ये चीज हमें चाहिए। लेकिन मुर्शिद कामल, राहबर, पीर वो जानते हैं कि ये इसके लिए बेहतर नहीं है। अगर किसी का पीर कामल हो तो इसके लिए वही दुआ करता है जो इसके लिए बेहतर हो। कुरान पाक में फरमाया, बाज चीजें ऐसी हैं जिनको तुम पसंद करते हो, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती,
اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پیر کامل مل جائے تو ہمارے لیے وہی ہوگا جو خدا کو منظور ہے، کیونکہ پیر ہمارے لیے وہی دعا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکس رحمۃ اللہ علیہ جب کسی بادشاہ کو خط لکھ کر کسی کی سفارش کرتے تو یوں لکھتے: اگر یہ کام خدا کے علم میں ہے تو یہ کام تو کر دے گا اور یہ فقیر تمہارا مشکور ہوگا، اور اگر خدا کو منظور نہ ہوگا تو نہ کرے گا، تو اس کے لیے مجھے تم پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ بادشاہ سمجھ جاتا کہ یہ تحریر کسی اللہ والے کی ہے اور کام کر دیتا۔ ایک سپیرے کو دوسرے سپیرے کا سانپ پسند آ گیا، اس سے مانگا تو اس نے کہا کہ یہ میرا محبوب ہے، میں نہیں دے سکتا۔ رات کو سو گئے تو وہ چرا کر بھاگ نکلا۔ جنگل میں جا رہا تھا کہ محبت نے ستایا اور کھول کر دیکھنے لگا، سانپ نے نکلتے ہی ڈنک کیا اور وہ مر گیا۔ جب صبح ہوئی تو سانپ کے گم ہونے کا پتہ چلا تو اس سپیرے نے کھوج لگایا اور وہاں پہنچ گیا جہاں وہ مرا پڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر نفل پڑنے لگا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سپیرا اس سانپ کو چاہتا تھا، مگر یہ اس کے لیے اچھا نہ تھا، اور میں بھی چاہتا تھا، میرے لیے بھی اچھا نہ تھا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی اور سانپ نے اس کو ڈنک کیا اور یہ مر گیا۔ میں شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اگر یہ سانپ میرے پاس رہتا تو میرے لیے نقصان کا باعث ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ ایک پیر کامل ہو جس کی نظر لوح محفوظ پر ہو، اور پھر وہ ہمارے لیے وہی دعا کرے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ اس عالم جسام کے متصل ایک عالم ہے جسے عالم مثال کہتے ہیں، اور عالم مثال کے متصل ایک عالم ہے جسے عالم روا کہتے ہیں، اور عالم روا کے متصل ذات باری تعالیٰ ہے، یعنی ذات کا ذل روح، روح کا ذل عالم مثال، اور عالم مثال کا ذل عالم جسام یعنی عالم محسوسات ہے۔ ان چاروں مرتبوں کو جمع کرو تو پھر حضرت انسان بنتا ہے۔ وہ ایک مرتبے میں جسم ہے، ایک مرتبے میں مثال ہے، فرشتہ ہے، ایک مرتبے میں روح ہے، اور ایک مرتبے میں ذات ہے۔ انا الحق کہتا ہے، حضرت رومی فرماتے ہیں، وہ گفتگو جو بے وقت بے موقع کی جائے اس پر لعنت ہے، اور جو بات صحیح وقت پر ہو وہ خدا کی رحمت کا باعث ہے۔ جو بر وقت انا کہے رحمت کا مستحق ہے، اگر کوئی بے وقت کہے تو لعنت کا مستحق ہے۔ اگر لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جائے اور آگ ہونے کا دعویٰ کرے تو مستحق ہے، اگر ٹھنڈا ہوتے ہوئے آگ ہونے کا دعویٰ کرے تو مستحق نہیں، حالانکہ وہ صلاحیت اس میں موجود ہے جس پر یہ تمام مقامات کما حق کھلیں گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کھلیں گے، اس لیے وہ خاتم النبی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 7 مرتبے بیان کیے ہیں: احدیت، وحدت، وحدیت، روح، مثال، جسم اور حضرت انسان۔ 7واں مرتبہ جو جامع جمیع مراتب ہے وہ حضرت انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الانسان سری و انا سراہ، انسان میرا بید ہے اور میں اس کا بید ہوں۔ جب خدا کا بید کھلا انسان ظاہر ہوا، اور جب انسان کا بید کھلا تو ذات ظاہر ہوئی۔ اب انشاءاللہ اگلے حصے میں حضرت انسان پر گفتگو کروں گا۔ انسان وہ ہے جس کو احسن تقویم عطا کی گئی، مکان کی تمام چیزیں ہوں، یعنی دیواریں، چھت، دروازہ، کھڑکیاں وغیرہ سب ہوں تو احسن تقویم ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو علم غیب نہیں ہو سکتا وہ مادی ہیں، وہ روحانیت سے کورے ہیں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان ہوگی۔ اللہ پاک ہم کو اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے